रचित राय। तो रचित राय, गुड आफ्टरनून। आवाज तुमको जा रही है बेटा? ओके रचित। So resources refers to the gift of nature which helps in satisfying our needs, but it must be technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable. So in class 10, you have to study about the role of technology in resource development, how utilization of resource also affect the economic development, what consideration or what steps should be taken to make resources profitable while utilizing our resources. That's why we are studying resource planning also, because if we utilize resources without any planning, then that may create wastage, that may not completely usable in nature. So for utilizing resources, we need to know what is resource, what is the concept of resource. It is a gift of nature which helps to satisfy our needs and development and our aspiration, future aspiration. And for that, it must be technologically accessible, economically feasible. Economically feasible here means that must be economically profitable. While after surveying and making resource or resource mapping, now we decide, we plan to take out resources from the earth, but that can be given under priority, which is the demand of that time or demand of current time. And जिसका डिमांड ज्यादा होगा और वो जो ज्यादा हमारे लिए अर्जेंटली होगा, ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, उसको हम प्रायोरिटी में पहले करेंगे। तो रिसोर्स का डिफिनेशन तो कोई बताए नहीं तुम लोग। कैन यू क्लासिफाई द डिफरेंट, या व्हाट आर द डिफरेंट बेसिस ऑफ रिसोर्सेज? चाहो तो चैट बॉक्स में लिख कर बताओ या फिर बोल कर बताओ। यू मस्ट रिमेम्बर 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा सब मिलाकर, और उसके बाद आपका 2 नंबर का 5 क्वेश्चन होगा और 1 नंबर का 5 क्वेश्चन होगा। इस तरह का क्वेश्चन पैटर्न है 20 मार्क्स का। भले ही आपका क्लास टेस्ट है, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। You are the student of board class, so this is very important for you. So what are the basis of classification of resources? Om Kumar, वीडियो ओपन करके बताओ। Yes, ma'am. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज बताओ। On the basis of origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of potential, on the basis of ownership, ऑन द on the बेसिस basis ऑफ, of status, ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल या ऑन द ownership, बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट? on status of development and on the basis of ownership. यस, वेरी गुड। इसमें ओनरशिप जो है ये न्यू कंसेप्ट है फॉर क्लास 10 के लिए, है ना। अभी तक हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो बेसिस पढ़ते थे उसमें ओनरशिप था, लेकिन अभी आपका रिसोर्स में भी है ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, हंसिका, डिवाइड रिसोर्सेज और क्लासिफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। चलो फटाफट बताओ। हंसिका, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। क्लास में कम रहती है। यस मैम। हाँ, रिसोर्सेज को क्लासिफाई करो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इस बीच में जिनको अगर कुछ कहीं डाउट है तो वो पूछने के लिए अपना क्वेश्चन रेडी करें।
हाँ बेटा बोलो. Yes, Rudra On the Kashyap, you are basis right. of ownership, on the basis of ownership, resources classified into two types: individual and community owned resources. बस ओनली इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी. आवाज जा रही है ना ठीक से? हाँ, यस मैम. इंडिविजुअल, कम्युनिटी ओन्ड, नेशनल और इंटरनेशनल. तो इतना टाइम क्यों लग गया बेटा? On the basis of ownership, resources are classified into four category: individual resource, community resource, national resource, and international resource. Now, Prisha, open your video. Give one example of community resource. Prisha, हाँ बेटा, community resource का example बताओ. You must remember all these are important for your board exam also. क्योंकि वहां पे भी एग्जाम्पल से पूछता है स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है. कम्युनिटी रिसोर्स का एक एग्जाम्पल बताओ. पिकनिक. हाँ, पिकनिक. पिकनिक. पिकनिक स्पॉट. यस, तो ये पिकनिक को पिकनिक स्पॉट. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. क्लैपिंग फॉर प्रिशा. बाकी लोग धीरे धीरे घटते क्यों जा रहे हैं भाई? नेक्स्ट शुभम. शुभम, नेशनल रिसोर्स का एक एग्जाम्पल बताओ. शुभम कुमार. प्रियांशु शर्मा भी आया है ना? शुभम, ओपन योर वीडियो. कहाँ गया? अब तो ये ऑडियो ही कनेक्ट नहीं है तो सुनेगा कैसे? प्रियांशु कुमार शर्मा का भी ऑडियो कनेक्टेड नहीं है तो कहाँ से? वो तो अपना ये कर लिया और फिर चला गया है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग? कम ऑन, राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स. शो योर आंसर. Half minute is given to you. Half minute. What is resource planning? हाफ मिनट गुजरते देर नहीं हो रहा है भाई. What is resource planning? I remember in one revision period or arrangement period, I have explained about resource planning. आवाज जा रही है सबको? Yes, रुद्र कश्यप. Very good, very good. रुद्र कश्यप, clapping for you. बहुत अच्छे. एकमात्र हर जगह प्रोजेक्ट भी यही बनाएगा और आंसर भी यही देगा. रचित, स्ट्रेटेजी ऑफ रिसोर्स टू इंक्रीज द डेवलपमेंट. चलो ठीक है ओम, तुम्हारा भी स्ट्रेटेजी वर्ड जब आ गया दैट मीन्स दैट इज योर आंसर इज करेक्ट. सो ओम इज गिवन आंसर. रुद्र, रुद्र भी आंसर दे चुका है. रुद्र हैज आल्सो गिवन आंसर. और कोई? प्रियांशु कुमार शर्मा, तुम ऑडियो वीडियो अब ज्वाइन किए हो, जरा अपना चेहरा दिखाओ. अच्छी बात है कि तुम ज्वाइन किया है. मैं देखना चाहती हूँ कि प्रियांशु सुन रहे हो ना? अपना वीडियो ऑन करो. और शुभम, प्रिशा, हंसिका, कोई नहीं लिखा है. आधा मिनट कब का चला गया? रिसोर्स प्लानिंग रेफर्स टू स्ट्रेटेजी मेड फॉर जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. स्ट्रेटेजी मीन्स क्या होता है? प्लानिंग मेड फॉर जुडिशियस utilization. Planning, because when we do any work with proper planning, that must be successful in nature. सक्सेस होने का वही चांसेस होता है जहां पर हम प्लानिंग से काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं प्लानिंग करके. तो रिसोर्स प्लानिंग भी क्या है? प्लानिंग और स्ट्रेटेजी मेड फॉर जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस.
हाँ, लेकिन आप लिखोगे कैसे? डिफाइन ऐसे ही करोगे। रिसोर्स प्लानिंग इज ए स्ट्रेटेजी मेड फॉर जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। प्रियांशु कुमार शर्मा शायद नहीं सुना। प्रियांशु, प्लीज ओपन योर वीडियो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग? देखो, जो आ सकता है क्वेश्चन उसी तरह का पूछ रहे हैं, तो ये तुम समझ लेना कि अगर पूछ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस तो होगा ही। भले ही 8वीं बच्चा ज्वाइन करो, सबको बता देना। स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, प्रिशा। Yes, ma'am. व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग? Matching the resource development plan with overall national development. ये तो सबसे लास्ट स्टेज है। व्हाट इज इट्स फर्स्ट स्टेज? Identification and inventory of resource. यस, वेरी गुड। Evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill, and institutional setup. वेरी गुड। And third, matching the resource development plan with overall national development. हाँ, विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। बुक से नहीं ना देख कर बोल रही हो? अगर बुक से मैम भी थोड़ा थोड़ा मोड़ा ठीक है, अगर बुक से भी देखी हो तो अब ये याद रहना चाहिए तुमको, ठीक है ना? यस Resource मैम. planning is done on 3 different stages: inventory of resources, making planning for resources, and matching the national local plans with national development plan. सबसे पहले हम पता करेंगे कि किस किस तरह का रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। इसके लिए सर्वे करेंगे, इसके लिए मैपिंग करेंगे, और इसका क्वांटिटी क्वालिटी एस्टिमेशन करेंगे फर्स्ट स्टेज में। सेकंड स्टेज में करेंगे क्या कि प्लानिंग बनाएंगे कि कौन सा रिसोर्स को पहला सबसे पहले यूज करना है, निकालना है, या फर्स्ट प्रायोरिटी में कहाँ कहाँ रिसोर्स को डेवलपमेंट करता है, उसकी प्लानिंग करेंगे। एंड थर्ड स्टेज में जो हमने प्लानिंग की है और जो कंट्री का प्लानिंग है, यानी कि प्रायोरिटी, वो दोनों मिल रहा है या नहीं। अगर मिल रहा है तो बेस्ट हो गया, और उसके बाद हम यूटिलाइजेशन या निकालने का काम शुरू कर देंगे। नेक्स्ट, व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरली आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन, 2 मार्क्स में आ जाता है। व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग? what is the need behind resource planning? You have already studied it in class 8, पढ़ चुके हो। हम लोग रिसोर्सेस पढ़े, उसके बाद रिसोर्स प्लानिंग पढ़ रहे हैं। रिसोर्स प्लानिंग में 2 पार्ट हो चुका है, तीसरा पार्ट है व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग। कम ऑन फास्ट, हु विल गिव आंसर? प्रियांशु तो एकदम सो ही गया है। यस, वेरी गुड, यस वेरी गुड। रुद्र, योर आंसर इज राइट। इसको एक वर्ड में कैसे लिखेंगे रुद्र? जो तुम पॉइंट लिखा है उसको एक वर्ड में कैसे लिखेंगे? वेरी गुड, हाँ ठीक है। रुद्र कश्यप भी आंसर दिया और शुभम कुमार भी आंसर दिया, दोनों का सही है। यस, 1 वर्ड में इसको कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यस, तुम्हारा ओम, जो तुम्हारा आंसर है उसमें जो विदाउट डैमेजिंग है, दैट पोर्शन इज करेक्ट। तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो, वी नीड रिसोर्स प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फर्स्ट पॉइंट। वी नीड रिसोर्स प्लानिंग फॉर कंजर्विंग रिसोर्सेज टू फ्यूचर जनरेशन। हो सकता है ना आयुष? करेक्ट है बेटा। वी नीड रिसोर्स प्लानिंग फॉर रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। यस, ये भी लिख सकते हैं। हंसिका जो लिख रही है, वी नीड रिसोर्स प्लानिंग फॉर जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये कुछ भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग में बात रखना है। रिसोर्स प्लानिंग इज नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, नीडेड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फॉर मेंटेनिंग इकोसिस्टम, for conserving resources to future generation, for reducing wastage to resources, for
जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग करते हैं तो किसी एक पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि हर को मिल सके, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सोशल एंड इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो एडवर्सली अफेक्टेड होता है किसी भी कंट्री का। तो इसलिए रिसोर्स प्लानिंग इज रिक्वायर्ड फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। हिस्ट्री का चैप्टर आज किसी और का क्लास नहीं है सोशल साइंस में बेटा? क्योंकि 10 में हिस्ट्री में क्या आ रहा है वो पोर्शन तो हमको पता ही नहीं क्या आ रहा है। मैम फर्स्ट चैप्टर का कुछ ही पोर्शंस आ रहा है, 3.2 तक। क्या है फर्स्ट चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर क्या है? चलो हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको आगे पूरा से रिवाइज करा देते हैं ताकि इसमें कुछ नहीं बचे। यूनिफिकेशन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हाँ, राइज ऑफ नेशनलिज्म। बेटा अब ये चूंकि टॉपिक पढ़ा नहीं रहे हैं इसलिए इसमें से क्या क्या टॉपिक आपके सिलेबस में डला हुआ है। नेशनलिज्म का कंसेप्ट तो कॉमन है हर जगह, चाहे वो यूरोप का हो, फ्रांस का हो, अमेरिका का हो, अमेरिकन रेवोल्यूशन से, या फिर इंडिया का हो, कॉमन प्रॉब्लम तो सेम है। लेकिन चूंकि टॉपिक पढ़ा नहीं रहे हैं इसलिए हम चाह रहे थे कि अभी हम ज्योग्राफी में तुमको दोबारा ज्यादा पढ़ना ना पड़े, जितना पोर्शन है बता देते हैं ताकि तुम बाकी समय में हिस्ट्री रिवाइज कर लो। ठीक है? लो, सिविक्स में हम ही से पूछ रहा है सिलेबस। सिविक्स का सिलेबस नहीं दिया गया है क्या? मैम बस हाँ जी ज्योग्राफी और हिस्ट्री से ही आ रहा है। हाँ, तो Civics से सिविक्स आ ही में नहीं। नहीं आएगा, सिविक्स नहीं होगा, इकोनॉमिक्स भी तो नहीं है, ये तो हम बताए ना। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ही पोर्शन आएगा। नेशनलिज्म पढ़ लेना, और ज्योग्राफी हम अच्छे से अभी रिवाइज करवा दे रहे हैं। हम लोग पहुंच गए हैं, क्लासिफिकेशन हो गया, डेफिनेशन हो गया, जिससे क्वेश्चन आता है जनरली एग्जाम्पल से। अब हम लोग रिसोर्स प्लानिंग को भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। क्या होता है, वाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग एंड व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। इसके बाद आता है आपका रिसोर्स प्लानिंग ऑफ इंडिया, कंपैरेटिव स्टडीज गिवन इन योर बुक। कुछ याद है? कंपैरिजन दिया हुआ है 1960-61 का और 2014-15 का, बुक में याद है ना? लैंड यूज, लैंड रिसोर्स, रिसोर्स प्लानिंग के बाद शुरू होता है हमारा लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स क्या है? वी ऑल नो दैट। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आता है और तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन क्या है? इंडिया हैज ए लैंड अंडर वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट with example with the help of diagram. That question was asked in previous year। इस साल नहीं आया है, इसके पहले वाले साल में आया है, और तुम्हारे वाले ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। कोई बताएगा? व्हाट डू यू नो अबाउट द लैंड रिसोर्स ऑफ इंडिया? पहले लैंड रिसोर्स कितना है ये बताओ। क्लास 9 का ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, टोटल एरिया। व्हाट डू यू नो अबाउट लैंड रिसोर्स? व्हाई डू वी नीड टू स्टडी लैंड रिसोर्स? फटाफट बताओ, टाइम निकलता जा रहा है। पूरा टॉपिक हम सोच रहे हैं कवर कर दें आज। लैंड रिसोर्स, इंडिया possesses about 3.28 million of total area of the earth. Yes, very good. Plain, plateau, mountains. And land resource refers to the combination of plain, plateau, mountains, as India has a variety of relief feature under land resource. What is the total percentage of plain area in India out of total land resource? कोई बताएगा? टोटल परसेंटेज ऑफ प्लेन एरिया, माउंटेन्स। करेक्ट है, करेक्ट है शुभम, करेक्ट है अंशिका, जो भी दिए माउंटेन्स। यस प्रीशा, यू आर राइट। एंड प्लेटो 27%। So 43%, 30% माउंटेन एंड 27% प्लेटो। जब अगर क्वेश्चन आता है इंडिया हैज ए लैंड अंडर वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, आप एक सर्कल डायग्राम बनाएंगे
और उसमें 43% रफ डायग्राम में दिखाएंगे प्लेन को, 30% दिखाएंगे माउंटेन को एंड 27% दिखाएंगे प्लेटो को। उसके बाद लिखे all these plain, plateau and mountains are very important for India's overall development, as plain contribute in maximum development in crop cultivation and satisfy the basic needs of the people. The plain area which is covered with fertile soil is very important for agricultural activity, and that satisfy the basic needs of our ever increasing population. Plain area is also suitable for other kind of development, like development of housing societies, roadways, railways, market complex, school, colleges, etc. Plateau. India's plateau, which is found in almost about 27% of total area, that is also not less important. It is also very much important, as the plateau area of India is rich in mineral resources, and mineral provide basis for industrialization, and we all know that more and more development of industries means more and more income generation, more and more employment opportunity, and more possibilities of development of trade and commerce. The third division, that is mountains. It is also very much important for the country like India, because first of all, it helps in defending our country, because our young-fold mountains are found in the northern borders of India. Secondly, mountains provide perennial source of water, and we all know that water is very important for existence of all kind of life. Thirdly, mountains provide forest base to our country. We know that land is fixed resource, but population is increasing day by day, and we have to satisfy our increasing demand by this limited resources. And with this limited resources, in this condition, under this circumstances, we can't left mountain without any use. So mountains also helps in developing tourism through its beautiful valleys, providing forest cover for maintaining ecological balance, and its glaciated part provide perennial source of water to perennial rivers like Ganga, Yamuna, Indus, Brahmaputra, etc., which is essential for almost all kind of development. So these are common importance of plain, plateau and mountains. तो यही आपको लिख देना है, इंडिया हैज ए लैंड अंडर वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स. नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया? हम लोग रिसोर्स प्लानिंग पढ़े, रिसोर्स प्लानिंग में हम लैंड रिसोर्स पढ़ रहे हैं, और लैंड रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे होगा? थ्रू लैंड यूज पैटर्न. तो लैंड यूज पैटर्न क्या है? व्हाट इज लैंड यूज पैटर्न? इट इज अ स्ट्रेटेजी मेड फॉर जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ land resource, because we utilize land for various purposes and purposes are given. इसी लैंड में कल्टीवेबल लैंड है, इसी लैंड में फॉलो लैंड है, इसी लैंड में करंट फॉलो लैंड है, इसी लैंड पर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स है, इसी लैंड पर कल्चरेबल वेस्ट लैंड है, इसी लैंड पर फॉरेस्ट है, इसी लैंड पर आपका पास्चर लैंड है, इसी लैंड पर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में बहुत सारा लैंड है. तो इस तरीके से हम लैंड का यूटिलाइजेशन करना है, और जो कि एकदम लिमिटेड रिसोर्स है. तो इसीलिए इसका जुडिशियस यूटिलाइजेशन के लिए हम लोग प्रॉपर लैंड यूज प्लानिंग करते हैं. और ये प्लानिंग हमारा स्टार्ट होता है आफ्टर इंडिपेंडेंस. इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद जो आपका प्लानिंग होता था वो 5 ईयर प्लानिंग के नाम से जाना जाता था. अब 5 ईयर प्लानिंग का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? कोई बताओ. 5 ईयर प्लानिंग का नाम क्या कर दिया गया है? अब कोई नहीं बताएगा. 5 ईयर प्लानिंग का नाम अब चेंज करके यस नीति आयोग रख दिया गया. इकोनॉमिक प्लानिंग 2014 से उसका नाम बदल दिया गया है, और इसको इस प्लानिंग में सारे मॉडर्न स्ट्रेटेजी अप्लाई किए गए हैं, ताकि हर एक रिसोर्स जो हमारे यहाँ अवेलेबल है उसका जुडिशियस यूटिलाइजेशन हो सके मॉडर्न साइंटिफिक लाइन पर. तो हमारे यहाँ कंपैरिजन दिया हुआ था 2 पीरियड का लैंड यूज पैटर्न का, 1960-61 एंड 2014-15. क्लास में इसको बताया गया है डिटेल में.
बताया गया है? क्योंकि उतना लंबा पढ़ाने का टाइम नहीं है, फिर हम शॉर्टकट में इसको बताएंगे। कोई बताओ, डिटेल में इसको पढ़ाया गया है? सेटिस्फैक्टरी फीचर्स, डिससेटिस्फैक्टरी फीचर्स, क्या इंप्रूवमेंट हुआ 60-61 के बाद 14-15 में? बताया गया है। पॉजिटिव चेंजेस क्या है, निगेटिव चेंजेस क्या है? कोई नहीं अब बोल रहा है। जल्दी बताओ, 8 मिनट का टाइम है, उसमें हमको ब्रीफली बता देना है, क्योंकि लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन टर्म सब जानते हो। से यस और नो, या जानने नो मैम। नहीं बताया गया है? तो चलो इसी को जानना है। देखो 60-61 में तुम्हारा फॉरेस्ट लैंड होगा करीब करीब 18%। बुक अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स लेके बैठे हैं। और जो 2014-15 में बढ़कर कितना हो गया है? 22 से 23%। 18% था कब? 60-61 में, 1960-61 का जो है प्लानिंग, और ये बढ़ गया 24%। हमको इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए कितना चाहिए? 33%। 33% of total area must be under forest for maintaining ecosystem। पहले ये 18% था, अब आके 24% हो गया। दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न, जो हर 10 साल के बाद रिवाइज होता है। 40 साल में ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हुआ कि लिमिटेड रिसोर्स है लैंड रिसोर्स, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसके बाद भी हमारा फॉरेस्ट कवर 18% से 24% हो गया। तो ये क्या है? एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। बट स्टिल वी हैव टू गो अफार फॉर मेंटेनिंग इकोसिस्टम। तो भले ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है लैंड यूज पैटर्न का, लेकिन अभी भी ये 33% नहीं है, इसलिए इट इज वन ऑफ द डिससेटिस्फैक्टरी फीचर। बट when comparison is asked in examination, it is the positive aspects of India's land use pattern, because earlier it was 18% and now it is 24%। ठीक है? तो लैंड यूज बनाने का फायदा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अब एक दूसरा और एक पॉइंट होगा, अगर आपके पास बुक है तो उसमें देखो, वेस्टलैंड 60-61 में हमको लगता है 14, 15, 16, 17%, अलग अलग बुक में अलग अलग ये दिया हुआ है, तक वेस्टलैंड था, जो घट के अब 7-8% हो गया है। दिख रहा है? प्रिशा खोली हुई थी ना बुक, जरा देखो उसको, डायग्राम वाला को। यस मैम। क्या लिखा हुआ है उसमें? वेस्टलैंड पहले कितना था? वेस्टलैंड था पहले 6.23%। पहले नहीं, 60-61 में देखो, वेस्टलैंड 6.23%। हो ही सो नहीं सकता है। 6.23 मैम, इतना ही दिया हुआ है मेरे बुक में। नहीं, हो ही नहीं सकता है, तुम गलत देख रही हो। अब बता रहे गलत कैसे देख रही हो, तुम पर डायग्राम देखकर बताओ। 60-61 मैम के नीचे डायग्राम में वेस्टलैंड, उसी में लिखा हुआ है 6.23%, 23%। हाँ अभी 23, 6.23। 6.23, और 2014-15 में कितना हो गया? 4%। 6% वेस्टलैंड तो था ही नहीं। खैर जो भी है, 6 से 4 वेस्टलैंड भी कम हो गया पहले से। वेस्टलैंड कम हुआ तो कितना है रुद्र? 6.23 कल्चरेबल वेस्टलैंड। वही तो कह रहे हैं तो गड़बड़ सा देख रही है। हम फिर भी एक एग्जांपल बता रहे हैं, वो होगा 14, 15 या 16, 17%, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग तरह का कुछ कुछ डाटा दिया हुआ है। हाँ देख के वो पूरा स्क्रीन पे करो बुक। रुद्र बताओ कितना था वेस्टलैंड? देखो तो 2015, 14-15 में, और 2060-61 में। मेक बैरन एंड हाँ हाँ अनकल्चरेबल वेस्टलैंड हाँ, बैरन लैंड 18.11। है ना, 17% से है ना बैरन अनकल्चरेबल वेस्टलैंड, वही हो गया वेस्टलैंड। और अब कितना हो गया 14-15 में? 5.5%। सोचो, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है लैंड यूज प्लानिंग का या निगेटिव एस्पेक्ट्स है? लैंड यूज पैटर्न जो पॉजिटिव। बार बार रिवाइज हो रहा है, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट को शो कर रहा है या निगेटिव? ज्यादा बैरन लैंड होना अच्छा है या कम बैरन लैंड होना अच्छा है?
कम होना। जो लैंड का हम कुछ यूज नहीं करते थे वो पहले था 18%, और वो लैंड घटकर अब कितना हो गया है, 5-6%। यानी कि हमारा लैंड यूज प्लानिंग इफेक्टिव है, जो बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो सही है। सो रिड्यूसिंग वेस्टलैंड इज वन ऑफ द सेटिस्फैक्टरी फीचर ऑफ लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया। कभी कभी आता है एग्जाम में, अभी भी आ सकता है, आई डोंट नो, लेकिन क्या आता है, नेम वन डिससेटिस्फैक्टरी फीचर। वन डिससेटिस्फैक्टरी फीचर क्या है, 24% of forest area which is less than scientific norm, which is less than required percentage। 33% चाहिए, 24% ही है या 23% ही है। सेटिस्फैक्टरी फीचर क्या है, वेस्टलैंड इज गोइंग टू बी रिड्यूसिंग डे बाय डे। दिस इज वन ऑफ द सेटिस्फैक्टरी फीचर ऑफ लैंड यूज पैटर्न। इंडिया जैसे कंट्री में, जो कि विश्व का सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, वहां पे वेस्टलैंड का तो घटना बहुत जरूरी है, और वो हो रहा है हमारा लैंड यूज पैटर्न में। और सेटिस्फैक्टरी फीचर इंडिया का लैंड यूज पैटर्न का क्या है, नेट कल्टीवेबल एरिया, नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया कितना दे रहा है, 45-46% दोनों पीरियड में, वही है ना नेट सोन एरिया। 46 हाँ दोनों समय में, 46.20 हाँ करीब करीब बराबर है, 45-46%। ये नेट सोन एरिया, when we compare our net zone area with that of the different countries of the world, then we come to know that India is in advantageous position। जापान का 12% नेट सोन एरिया, चाइना का 14% नेट सोन एरिया, अमेरिका का 23% नेट सोन एरिया, कुछ कंट्री ऐसे भी हैं जहां पे 8-9% ही नेट सोन एरिया है, और इंडिया के पास 45%। दैट इज वन ऑफ द सेटिस्फैक्टरी फीचर। अब चूंकि इसमें बढ़ नहीं रहा है, बढ़ इसलिए नहीं रहा है कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारा सिर्फ एग्रीकल्चर ही एक एक्टिविटी नहीं है। हम बताए थे ना इकोनॉमिक्स क्लास में, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है लेकिन अदर सेक्टर का भी डेवलपमेंट हो रहा है। सो वी आर गोइंग थ्रू अ सैचुरेशन पॉइंट। वी कांट इंक्रीज एरिया अंडर एग्रीकल्चर, बट वी कैन इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन बाय प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर ऑन साइंटिफिक लाइन। ठीक है ना, तो एरिया नहीं बढ़ा सकते इसलिए वही है, लेकिन प्रोडक्शन डे बाय डे बढ़ रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन, जिन रेवोल्यूशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बायो टेक्नोलॉजी, ये सब को अप्लाई करके हम प्रोडक्शन डे बाय डे बढ़ा रहे हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ कंसंट्रेट करते हैं सेटिस्फैक्टरी एंड डिससेटिस्फैक्टरी पर। सेटिस्फैक्टरी नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया जानते हो, टोटल कल्टीवेटेड एरिया। एक ग्रॉस सोन एरिया भी टर्म आता है, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। ग्रॉस सोन एरिया क्या होता है, टोटल कल्टीवेटेड एरिया एंड द एरिया विच इज कल्टीवेटेड ट्वाइस और थ्राइस इन ए ईयर, दैट कैन बी कैलकुलेटेड ट्वाइस एंड थ्राइस टाइम्स। मान लो कि 10 हेक्टेयर लैंड पर एक साल में एक क्रॉप होता है, तो वो 10 हेक्टेयर हो गया नेट सोन एरिया। उसी 10 हेक्टेयर में से 5 हेक्टेयर पर 2 बार क्रॉप होता है, तो पहला बार तो 10 हेक्टेयर में आ गया वो एक क्रॉप, और दूसरा 5 हेक्टेयर का क्रॉप और ऐड कर लेंगे, तो 10 और 5 15 हो गया ग्रॉस सोन एरिया। तो क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन नेट सोन एरिया, दैट इज टोटल कल्टीवेटेड एरिया of any country. What is gross sown area? Total cultivated area together with the area which is cultivated twice in a year. They together came to be known as gross sown area. Do you have any confusion? जल्दी से पूछ लो, 1 मिनट से भी कम बच गया है। Any confusion? ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। वैसे ये सब प्रैक्टिस टेस्ट है, हम आपके क्लास में बहुत बार